Hi 8th class. We are reading chapter 6 Revolt of 1857. This is the part 2nd video of this chapter. In previous video we have learned the revolt of 1857. The causes of revolt, that were political causes, social and religious causes, economic causes, military causes, spread of revolt, center of revolt. Now in this video we will read the suppression of the revolt. Students, the company decided to repress the revolt with all its might. Reinforcements were brought from England. It passed new law so that the rebels could be easily convicted. The British commander Henry Havelock and Colin Campbell were especially successful. Delhi was the first to be recaptured in September 1857, and it was a big psychological blow for the rebels. Bahadur Shah Zafar, Rani Lakshmi Bai was imprisoned and exiled to their kingdom. Bakhat Khan, Bahadur Khan, Rani Lakshmi Bai and Kunwar Singh died on the battlefield, while Tatya Tope was arrested and hanged. ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉलिसी और स्कीम चलाई कि वो किस तरह से इन रेबेलियन को दबा सकते हैं. उन्होंने रेबेलियंस को कुचल डाला, मार डाला, और जो उनके मेन लीडर थे उनको फांसी से लटका दिया. नाउ द स्टूडेंट कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. सो स्टूडेंट्स 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसके फेल होने के बहुत से रीज़न हैं. और वो क्या रीज़न है? द रिवोल्ट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड. इट वॉज कन्फाइंड ऑफ अ फ्यू एरियाज ओनली. स्टेट्स लाइक बंगाल, Sindh, Rajputana, Kashmir, East Bengal was unaffected by the revolt. It means ये इंडिया के हर इलाके में ये रिवोल्ट नहीं फैला, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो रिवोल्ट है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा. And the next point, lack of leadership and organizational skills. The freedom fighters fought the independence group at different places. There were no central leadership to coordinate the movement and give it a direction. Bahadur Shah Zafar was a weak, old and uninspiring leader. जो मेन लीडर होना चाहिए वो उस टाइम नहीं था, वो इतना प्रभावशाली वो नहीं थे. The revolt was a national movement, but it lacked unity. Many rulers like Scindia, Holkar, the Nizam, Raja of Jodhpur, the rulers of Nabha and Jind, etc. did not join the revolt against the British. The Sikh, Rajput and Gorak battalion remained loyal and helped the British to suppress the revolt. और इन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की. There was no unity and common ideals. कोई यूनिटी नहीं थी. The Hindu wanted to set up a Maratha rule while the Muslim wanted to revive the Mughal Empire. The revolutionaries were poorly organized. They had no common plan of action. Action का कोई प्लान नहीं था. और जो the sepoy were brave and selfless, but they were ill-equipped. और उनके पास कोई अच्छे से क्या नहीं थे, ना तो वो डिसिप्लिन थे और ना ही उनके पास कोई टेक्निक थी. The leaders of the revolt were not good generals. Okay. And no doubt Nana Sahib और तात्या टोपे and Rani of Jhansi were brave और patriotic तो थे, but the lack of the qualities of generalship and military training, उनके पास ये क्वालिटी नहीं थी. On the other hand, general like Havelock, Nicholson, Campbell were more able and experienced.
बहुत ही एक्सपीरियंस थे ये। द रेबल लैक्ड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन, materials and money, while the British government poured immense supply of man, money and arms into India। ये बहुत डिफरेंस था यहाँ पर। द टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम जो था, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर कंट्रोल्ड, किन्होंने कंट्रोल किया था? इंग्लिशर्स। एंड स्टूड दैम इन अ गुड स्टेट इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट, और उनको पूरा मौका मिल गया इसको दबाने का। और एक जो मेन कारण था कि जो डेट रखी गई थी इस रिवोल्ट को स्टार्ट करने की, ये उससे पहले ही स्टार्ट हो गया। द रिजल्ट वॉज दैट द होल प्लान रिमेन्ड डिसऑर्गेनाइज्ड एंड द ब्रिटिश गॉट सफिशिएंट टाइम टू ऑर्गेनाइज देयर फोर्सेज एंड रिसोर्सेज टू क्रश द रिवोल्ट। और इस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे रिवोल्ट को क्रश कर दिया। अब रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट के क्या क्या रहे यहाँ? द रिवोल्ट प्रोड्यूस्ड फार रीचिंग रिजल्ट्स और कंसिक्वेंसेज। व्हाट दे वर? द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी एंडेड इन इंडिया। An act passed by the British Parliament in August 1858, the rule of India was transferred to the British Crown and Parliament। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया था और सारा का सारा जो पार्लियामेंट इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने यहाँ पर संभाल लिया था। द एक्ट ऑल्सो अबॉलिश द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। A minister in the British cabinet was made responsible for the administration of India. It was known as the Secretary of State for India. A council of 15 members was appointed to help him. The Governor General of India was to be called the Viceroy, and the Lord Canning became the first Viceroy of India. And Queen Victoria issued a proclamation in November 1858 which granted various rights to the Indian princes and the people. It assured the princes that their territories would not be annexed to the British Empire. And the proclamation guaranteed full religious freedom, and it also proclaimed that the Indian would be appointed to high post if they were qualified, okay, without any distinction of caste, color, creed and place of birth। बिना किसी भेदभाव के उनको हाई पोस्ट दी जाएंगी। A general pardon was granted to all except those who were guilty of murdering the British। It proclamation of 1858 promised that the government of India would try to advance the material and moral progress of India। The Indian army was recognized, the number of British soldiers were increased and the artillery was placed under their control। Last but not the least, the revolt of 1857 was undoubtedly a great struggle of the Indian people for freedom from British imperialism। It aroused national feelings among the people and paved the way for the rise of national movement। It served as a source of inspiration on the later struggle for freedom। देखो स्टूडेंट्स, उस वीडियो में जो अभी मैंने आपको अभी शो करके बताई है उसमें हम वैसे तो पढ़ चुके हैं रीजंस फॉर फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट, लेकिन उसको हम थोड़े से पॉइंट टू पॉइंट और अगेन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएं और आप लाइफ में उन चीज़ों को कभी ना भूलें। देखो, इस 1857 जो रिवोल्ट हुआ उसके फेल होने के मेन कारण क्या थे? द रिवोल्ट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड। द रिवोल्ट was not widespread। वाइडस्प्रेड का मतलब है कि जितनी अच्छे तरीके से उसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल जाना चाहिए था, ये फैला नहीं था। कुछ कुछ जगह ही पर ही था और कुछ जगह पर तो ये बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाया था। पूरे लोगों का एक साथ एकजुट मिलकर इस रिवोल्ट के लिए सहयोग नहीं मिल पाया। ओके, एंड द सेकंड वन इज गिवन हियर, लैक ऑफ लीडरशिप।
and organizational skill. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि एक रिवोल्ट को या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी स्कीम हो, उसके लिए एक बहुत अच्छे लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी उस चीज़ के लिए भागीदारी कर रहा है उसको वो अच्छे तरीके से समझा पाए और उनको टाइम पर डायरेक्शन मिलता रहे। इसमें क्या थे, जो बहादुर शाह जफ़र थे वॉज वीक, बहुत ही कमज़ोर थे, ओल्ड एंड अनइंस्पायरिंग लीडर। ओके, और जब पूरे के पूरे ग्रुप का लीडर अच्छा नहीं होता तो वो चीज़ कभी भी सक्सेस नहीं होती जिसके लिए वो इकट्ठा होते हैं। And the third one, no common plan of action. It means the leaders had joined the revolt because of the threat posed to their own throne to recapture their lost territories. उनका कोई प्लान नहीं था, and the all section of society did not support the revolt. It means students, जो बहुत से रूलर थे did not join the revolt, वो इस रिवोल्ट में शामिल होने के लिए नहीं आए। ओके, एंड द फिफ्थ वन, द emerging middle class did not, the emerging middle class did not support the rebels. इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो द इंटेलेक्चुअल टीचर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रेबल। जो हाई पोस्ट पर थे उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया। और क्या थे, जो सम इंडियंस उन्होंने क्या किया, even supported the suppression of the revolt. बहुत से ऐसे इंडियंस थे जिनमें कौन कौन हुए, सिख हुए, राजपूत हुए और गोरख बटालियन। इन्होंने क्या किया, जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनकी हेल्प की इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। ओके, एंड द सेवन वन, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन एंड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, यहाँ भी बहुत बड़ी कमी थी कि जितने भी रेबल्स थे उनके पास कोई मॉडर्न वेपन और टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही वेल इक्विप्ड थे और उनके पास गन भी थी और फाइट करने के लिए हर चीज़ें उनके पास प्रॉपर थी। तो यहाँ भी सबसे बड़ी कमी यहीं रही। एंड द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम द फिक्स्ड डेट। Started before the fixed date.
जो एक डेट निश्चित तय कर रखी थी, वो क्या कर रखी थी कि इस रिवॉल्ट को 31 मई 1857 से स्टार्ट करना है। कब? 31 मई 1857 से इसको स्टार्ट करना था, बट ये उससे पहले स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, द होल प्लान वाज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड द ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड गॉट सफिशिएंट टाइम टू मोबिलाइज देयर फोर्सेस, और उनको बहुत अच्छे से टाइम मिल गया ताकि उनको वो अच्छे से इस रिवॉल्ट को ख़त्म कर पाए। ओके, एंड नेक्स्ट वन, द लैक ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस की भी बहुत कमी थी यहाँ। वो क्या क्या थी? मनी, मटेरियल, और जो ब्रिटिशर्स थे, जो उनकी आर्मी थी, वो इन चीज़ों से उनको कोई भी कमी नहीं थी, उनके पास ये चीज़ें बहुत ही प्रॉपर थी। एंड द नेक्स्ट वन, ब्रिटिश आर्मी was more disciplined। इसमें भी मेन बात क्या रही कि द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर ब्रेव एंड पैट्रियोटिक। बेशक थे वो बहादुर थे और देशभक्त पूरे थे, बट दे वर नॉट मैच फॉर द डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश जनरल्स। और जितने भी ब्रिटिश जनरल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थे in comparison of between Indian leaders. Okay, so these were the reasons for failure of 1857। और जब ये रिवोल्ट फेल हो गया, फेल होने के बाद मेन रिजल्ट क्या निकले इस रिवोल्ट के? सो द रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट क्या रहे स्टूडेंट्स? ये रहे, आफ्टर 1857 क्या हुआ? द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। जो रूल था, किसका रूल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉज एंडेड, ख़त्म हो गया। ओके, और क्या हुआ? इंडिया वॉज ब्रॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। किसके अंडर में आ गया इंडिया? ब्रिटिश क्राउन। ओके, यानी कि जो इंग्लैंड में शाही राज सत्ता थी, उनके अंडर में हमारा इंडिया चला गया। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। डायरेक्ट किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई? द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सिर्फ ट्रेड के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। ओके, बट ये हुआ कि इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पर ये रिवोल्ट हुआ था, और जब ये रिवोल्ट हुआ तो वहाँ इंग्लैंड में जो महारानी थी, उन्होंने देखा कि इंडिया में क्या हो रहा है। और मेन चीज़ यहाँ पर एक बात समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़ा लोन भी एक ले रखा था। किससे ले रखा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वो उसको समय पे चुका नहीं पाए। तो वहाँ की जो महारानी थी, उसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया और इंडिया को अपने अंडर में लेने के लिए जो पॉलिसी स्कीम थी उस पर साइन करवाए। ओके, और तब यहीं से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एंड हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये आ गई। एंड द स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. फिर बाद में इंडिया में रूल करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज़, बहुत से लॉ बनाए गए,
और इसमें क्या हुआ, द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम. दे हेल्ड मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द rebellion and treated them the suspicion and hostility. The British decided not to interfere in customs, religious belief and social practices of the people in India, and to make jamidar and landlords as their allies. Policies were made to protect them and give them security of rights over their lands. और स्टूडेंट्स बाद में नेचर क्या रहा ऑफ द रिवोल्ट. नेचर ऑफ द रिवोल्ट ये रहा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज़ बीन व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस. while the British historians call it just a sepoy mutiny. उन्होंने ये जो रिवोल्ट हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इसको अपने तरीके से अपना नाम दिया, जिसको बोला गया सीपॉय म्यूटाइनी. इट मीन्स और प्योरली अ military revolt. The Indian historians have evidence to prove that such a powerful and widespread revolt could not have the spread of a sudden without the support of the people. Okay, and people from all walks of life supported the revolt. They therefore call it the first war of independence. और हमारे इंडिया में इस रिवॉल्ट को किस नाम से जाना गया? The first war of independence. Another group of historians believed that calling it the first war of independence will not be very accurate, since India was not a nation in the modern sense of the word, as the loyalty of the people was with their respective states or rulers, nor was independence their real goal, so they call it the Great Rebellion of 1857. Students, जो ये रिवोल्ट हुआ 1857 was the first massive rebellion faced by the British after 100 years of their conquest. तो it started as sepoy mutiny beginning from मेरठ से ये शुरू हुआ. It was soon joined by a large number of people from different sections of society and threatened the very presence of the company in India. So the students, it is regarded as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century. It gave rise to a feeling of nationalism and inspired the people to long for independence from British rule. Okay, so now this chapter is over. I think student you got it. आप इसको ज़्यादा से अच्छे समझने के लिए इस वीडियो को देखें बार बार, और जो प्रीवियस वीडियो आप उसको भी देखें, और साथ ही साथ आप चैप्टर को भी रीड करें. नाउ हियर इज गिवन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. चलो हम इसको डिस्कस करते हैं. हियर इज गिवन द सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर. The new rifle, which was rumored to be greased with pig fat and beef tallow, was called. उसको किस नाम से जाना गया? B option is there, Enfield. The next question is there. The revolt of 1857 started from where? Meerut. Now question third. In 1858, the Queen of England was Queen Victoria, Queen Elizabeth, Queen Margaret. So Queen Victoria is the correct answer. The next question, the last Mughal emperor in India was whose? Shah Jahan, Aurangzeb या Bahadur Shah Zafar? So Bahadur Shah Zafar is the correct answer. Now fifth question is there. At Lucknow, the revolt was led by whose? Tatya Tope, Begum Hazrat Mahal or Nana Sahib? So Begum Hazrat Mahal is the correct answer. Now the sixth question is there. Which of the following helped the British to fight against the rebels? Gorkhas, Bakht Khan, Tatya Top. Who's Gorkhas? Fill in the blanks also given here. The Mangal Pandey was a
sepoy in where? Barakpur. Now the next one, the rebels declared as the Emperor of India. Who's? The Bahadur Shah Zafar. The rule of East India Company ended in, कब खत्म हुआ? After 1857. Now the next one, the highest position to which an Indian soldiers could rise was that of Subedar. The next, the name of the British Queen in 1857 was Queen Victoria. Okay, so now the next question is there. For the given questions, two statements are given, one labeled assertion A and other labeled reasons R. Select the correct answer from the code first, second, third and fourth as given below. So first यहाँ पर क्या बता रहा है? Both A and R are true and R is correct. Explanation of the assertion. It means दोनों ठीक है और R है जो उसकी correct explanation है. So second one, the both A and R are true, दोनों ठीक हैं, but R is not the correct explanation of the assertion. A is true but R is false, and next A is false but the R is true. So which one is correct? So now पहले हम statement को read करते हैं. So assertion यहाँ पे क्या दिया गया है? The revolt of 1857 is known as the first war of independence. उसका क्या reason है? People from all walks of the life supported to the revolt. So students यहाँ पर देखो, the revolt of 1857 इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया और इसमें जो सेकंड बताया गया कि हर जगह से लोग इस पर शामिल होने के लिए आए. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सपोर्टेड टू द रिवोल्ट, इसको सपोर्ट करने के लिए वो आए. तो इट मीन्स ये दोनों जो है आए, रिवोल्ट में आए, तभी तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना गया. सो विच वन इज़ करेक्ट स्टूडेंट? फर्स्ट वन. यहाँ पर जो ये है दिया गया है दैट इज़ नॉट द करेक्ट, फर्स्ट वन इज़ करेक्ट. अब करेक्ट द स्टेटमेंट. इन कानपुर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वॉज लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई. नो, नाना साहेब. डू इट करेक्ट. Which of the following is not the reason of the revolt of 1857? इसमें से कौन सा रीज़न नहीं है 1857 का जो माना जाए? Expansionist policies of the British, exploitation of economic resources of India, lack of leadership and organizational skills, professional discontentment among the sepoy. आप देख सकते हैं जो A है, B है और D है, ये सभी के सभी रीज़न थे रिवोल्ट को बढ़ावा देने के लिए, रिवोल्ट होने के लिए. बट यहाँ पर जो लैक ऑफ लीडरशिप है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये इसका. So C is correct the answer. Here is a given some question answer. So we will do these question answer in next video, part 3rd. Okay. Some important points given in between of the chapters. So चलो हम उसको read करते हैं. Analytic skills. Do you think the name given to 1857 revolt should be Sepoy Mutiny or First War of Independence or the Great Rebellion of 1857? Or can you suggest another name for it? Give reasons for your answer. आप सोचें इसके अलावा आप और क्या नाम दे सकते हैं, और क्या नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स? आप इसको खुद सोचेंगे और इसका आंसर खुद राइट करेंगे. ओके. एंड हियर इज गिवन द टेबल इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन सेंटर्स. स्टूडेंट यू शुड हैव टू लर्न. ओके. रेवोल्यूशन सेंटर्स एंड लीडर्स. कौन से कहाँ पर, किस सेंटर पर जो ये रिवोल्ट हुआ उसका लीडर वहाँ पर कौन बना,
सो फर्स्ट वन इज गिवन, बैराकपुर में कौन था? मंगल पांडे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहेब। बरेली खान बहादुर खान। बिहार कुंवर सिंह कल्पी तात्या टॉप। दिल्ली बहादुर शाह जफर। ओके, सो learn this table students. One another, here is given the student. ये क्या है? Cause of revolt, और ये क्या है? Military cause. ये क्या था? The rebellion actually started over a gun. Sepoy in the British Army were issued a new Enfield rifle which was much more powerful than the ones they had been using earlier. सबसे मेन कारण इस रिवोल्ट के होने का तो गन ही है। वैसे क्या था कि जो हमारे यहाँ सरवाइव कर रहे थे उनमें बोलने की हिम्मत ही नहीं आ रही थी, तो मंगल पांडे ने क्या किया, वो उनकी आर्मी में काम करते थे और उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जो कार्ट्रिजेस था उस पर गाय की चर्बी से उसको लगा रखी थी कि जब भी पाउडर को रिलीज़ करना है तो उसको दांतों से काटना पड़ेगा। और जो मंगल पांडे था वो ब्राह्मण था, उसने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसने इस ग्रीस को निकालने से मना कर दिया। और जब उसके पास ऑफिसर आए तो उन्होंने उनको मार भी डाला। ओके, और धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे आर्मी में, और दोनों की भावना को आहत पहुँचाया गया, क्योंकि एक जो इस पर कार्ट्रिजेस पर गाय की चर्बी के साथ साथ सूअर की चर्बी भी लगा रखी थी और मुस्लिम उसको शुद्ध मानते थे। और यहाँ पर हम हिंदू लोग अपने गाय की चर्बी, जो गाय को हम पवित्र मानते हैं, हम भी उसके ख़िलाफ़ हो गए थे। और ये धीरे धीरे पूरे जहाँ जहाँ ब्रिटिश आर्मी थी, ये बात वहाँ तक पहुँच गई और सब एक दूसरे के साथ एकजुट होने लगे और एक दूसरे के साथ मिलने लगे। ओके, और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। अब ये देखो, दिस पिक्चर शोज़ अ कार्ट्रिजेस फॉर द न्यू इनफील्ड राइफल। ये कार्ट्रिजेस है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर। रीड दिस चैप्टर अगेन। ओके।